के साथ। तो मैं यूजुअली मेरे लेक्चर्स तो रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा करके भेजती नहीं हूँ। लेकिन ये जो वीडियो होगा ना, ये जरूर भेजा जाएगा आपका एनएसएस का ग्रुप है उसमें, ताकि जिन लड़कियों ने आज का ये ट्रेनिंग मिस किया उनको देखकर वो पोस्टर बनाने के लिए कुछ अच्छी आइडिया आ सके। ओके। और 1 मिनट मैं पहले लाइट ऑन करती हूँ मेरा, क्योंकि अभी यहाँ पे लगता है जल्दी सूर्यास्त हो गया क्या, अंधेरा हमारे इधर जल्दी आया। 1 सेकंड, क्योंकि वरना अंधेरा हो जाएगा। 1 मिनट। आया Ma'am, only 4 girls. Yes, I'm here, very much here. Okay. So I can see there is a person from SYBCom. Nutika is from SYBCom, right? Yes, ma'am. Yeah, then Devanshi is from FYBCom. And who is this? Shabana Sheikh. आप कौन से क्लास से Yes, हो ma'am. बच्चा? You're from? FYBCom, ma'am. Oh, sorry. Ma'am, Devanshi to be first year, ma'am. First year FYBCom. BCom. Yeah, I know. And Shabana is also from FYBCom. Yes, ma'am. Okay, Zeba Mansoori, I think SY. DYBMA. TYB Miss. Oh, yeah. Good. And Kunika. Yes. Hey, Kunika, you are a CR. Devanshi, you are also a CR, isn't it? Yes, ma'am. And Yes, ma'am. you have said that CRs have to come to college tomorrow to attend the puja. Will you be coming from Yes, Kalyan? ma'am. Will you Yes. be coming? Nutika Mankar is laughing. देवांशी को तो क्या घूमने का यही होता है, बहाना चाहिए। दोनों वैक्सीन हो गए तेरे? देवांशी, Yes, ma'am. have you got 2 vaccines? Okay, fine. We will go ahead with the training. I am just going to read out in 1 minute this entire message which I sent you. Okay, and this was a message we received yesterday from SNET Women's University. Okay, the NSS cell is organizing this competition. Yeah, we are into NSS. NSS is National Social Service. Okay, and under that, we want to create awareness about National Voters Day among our own students as well as among other people. Okay, and National Voters Day is basically 25th of January. Should I start writing over here so that you are able to take screenshots? And maybe if you want to use this information in your posters, if you feel like, you can use it creatively. Yeah, so National Voters Day. Yeah, is January 25th, 20, okay, January 25th. It is a foundation day of the Election Commission of India. Do you know Election Commission of India? Have you heard of it?
Have you heard of National Election Commission of India? Girls, am I audible? No, miss. No? Okay. So, you all know that there are elections held in the country for states as well as to choose the government at the center. This is something you do know. You've studied in your school civics, isn't it? Yes, miss. Yeah. So, in India, those elections are not conducted by the government. They are conducted by an autonomous body, which is a legal, which is a legal authority to decide about rules, regulations, the schedule, okay, permissions regarding conducting of elections in India. Okay, so that legal body is called the Election Commission of India. Okay, the way we have RBI, Reserve Bank of India, which is the highest authority of the banks in India. Anything about banking? RBI जो बोलेगा वो सुनना पड़ता है. That's a rule. Okay. In the same manner, कुछ भी चुनाव के बारे में rules है, regulations है, candidates कितना खर्चा कर सकते हैं, कैंडिडेचर किसका सिलेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा. पार्टी ने तो टिकट दे दिया, मगर उसके बाद if election commission finds that this candidate has charges against him for murder, not yet proven guilty, but he's under court case for murder. If election commission decides, it can reject the candidature. Such powers are given to election commission, and at the same time, all elections, whether it is to choose the government in the center, that is to select MPs, member of parliaments, who will go in the Lok Sabha. Okay, दिल्ली के लिए इलेक्शन बोलते हैं ना, वो वाला. Then अपना महाराष्ट्र स्टेट का इलेक्शन, या अभी फिलहाल किसी राज्य में इलेक्शन चालू है, पता है, आने वाला है, पता है आपको? Yes, miss. मैम पता है पर कहाँ आने वाला है वो नहीं पता. अच्छा, कुछ राज्यों में आने वाला है इतना पता है? Yes, miss. अच्छा, जरा ना ढंग से पेपर पढ़ने का, जरा ढंग से वीडियो देखता है, वो भी ढंग से देखने का. हाँ, okay. So these states are Uttar Pradesh. Then you have Punjab. Then you have Haryana. Then you have Goa and also Uttaranchal. Now, these states have elections now. By 7th of March, or I think 7th of March, the result will be declared. Today is 5th of February. In Uttar Pradesh, by 7th of March, results will be declared. The election process is like this. Election Commission announces the date that the government of the state government, the Union Government of India, your current term is going to be over on this date. So before that, Election Commission of India will complete the process of new election. Okay, so that India as a country will never be without a government. Okay, yeah, and before the last date of the already voted government, which is voted for 5 years, yeah, that is over, the new elected government will have to be installed.
It could be the same political party, it could be different political party, it could be mixture of 2-3 different parties, doesn't matter. Okay, and when the elections are conducted all over India, there are about 570 Lok Sabha seats, which are divided across all the states in India. From, say, you and me are living in Mumbai, right? Yeah, most of you have your Aadhaar card from Mumbai. Yeah, तो आपको जब 18 years पूरे हो जाएंगे, या अभी या हो गए होंगे, you will be able to get your voter card. And that voter card you will be able to use in the next election for the state of Maharashtra as well as for the Union of India. Yeah, and at that time you will be able to vote. Okay, to elect the member of parliament or to elect the member of legislative assembly. Yeah, and what is that you are able to vote? What does that mean? What does that mean? Is it, well, you tell me now, some of you are CRs and all of you have attended the CR elections. Yeah. Was it not, I mean, people definitely thought about whom to vote, right? Yes or no? Yes, miss. Will anybody vote any student who never turned up in the online class? No. Why? You're right. But why? Because She's they not don't reliable. know who she is. That, and she's not reliable. Basically, how she never turns up in the class? Who would she? We don't know. How can we depend on her? Yeah. So, as a voter, even when it is at the election of your class level, as a voter, it is a responsibility to choose a right kind of a person who represents you as a class representative or as a municipal election है, तो आपका जो म्यूनिसिपल वार्ड है उस वार्ड में आपका representative, yeah, it is your village, and in the gram panchayat, तो ग्राम पंचायत में आपका representative. Do you understand? In the same manner, when it is election for the state government, we choose by voting. In my constituency, see, मेरा जो आधार कार्ड है ना वो मेरे मायके के एड्रेस से है, दादर. ओके, तो वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दादर पश्चिम मतदार संघ, या दादर पश्चिम मतदार संघ, तो उसमें 5-6 पार्टी के लोग खड़े होते हैं. या तो उसमें से मुझे जिसको वोट देना है उसको मैं दे सकती हूँ. And that vote which I give is a secret ballot. I have a right to vote anybody. एक तो I have a right to vote. Nobody can tell me that हाँ तू नहीं जा सकती वोटिंग के लिए, ऐसे ही नहीं जाने का. अरे जब ऐसा इलेक्शन होता है ना तो बड़े बड़े कंपनीज ऑफिसेस में एक तो गवर्नमेंट ऑफिस इज गिवन अ छुट्टी. दैट इज बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिसेस के और हम कॉलेजेस के वगैरह जो हम स्टाफ होते हैं ना, हम लोग को इलेक्शन की ड्यूटी लगाई जाती है. वो बूथ पे हम लोग को जाना पड़ता है और इलेक्शन लोगों से करवाना पड़ता है. या तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस को छुट्टी होती है. और प्राइवेट ऑफिसेस में कुछ कंपनियां छुट्टी दे देती है या कुछ कंपनियां अपने कंपनी में आने वाले जो वर्कर्स है उनको, हाँ आपका ड्यूटी 8 बजे का है लेकिन 7:30 बजे इलेक्शन चालू हो जाएगा, तो ना आप इलेक्शन के दिन
10 बजे तक आओ। या कुछ लोगों को बोला जाता है कि आप 8 बजे टाइम पे आ जाना, लेकिन आपको हमेशा 5 बजे तक काम होता है ना, तो आप ना 2 बजे ही चले जाना, क्योंकि फिर 2 बजे के बाद आप घर पहुंचोगे, घर के इधर पहुंचोगे 3 साढ़े 3 बजे, तो सीधा वोटिंग को जा पाओगे और वोटिंग कर पाओगे। एंड इट इज कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट कंपनीज, ऑफिसेस, shops, restaurants, etc., to give enough time to the staff to go for voting where they live. Is that clear? See, these are legal provisions made by the Election Commission of India. तो इलेक्शन कमीशन ने तो रूल्स बराबर बनाए हैं, आपको हक दिया है। वोट का हक हमें किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द बेस्ट बुक अपने इंडिया के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक वी कैन behold, which allows you and me, my dear, to be equal citizen. When you and me were born, our fathers, our mothers knew that ये 18 साल की हो जाएगी तो इसको वोटिंग राइट मिलने वाला है। मैं जब बॉर्न हो गई थी तब वोटिंग राइट 21 का था, या बट जैसे मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तब वो वोटिंग राइट 18 कर दिया। ओके, और तब मैं जब वो 18 कर दिया ना वोटिंग राइट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आई वॉज अबाउट 14 years old। तो मैं तब से 4 साल इंतजार कर रही हूँ, 18 साल की कब हो जाऊंगी, कब हो जाऊंगी, कब हो जाऊंगी, मुझे वोटिंग राइट मिलेगा। या जैसे मैं फुल टिकट में आने वाली थी ना, 12 साल के होते तो फुल टिकट होता है ना, तो आई वाज लाइक एक्साइटेड सिंस माय 11th बर्थडे कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी फुल टिकट। तो वैसा वोटिंग राइट इज अ ग्रेट थिंग वी हैव गॉट एज एन इंडियन सिटीजन। My dear girls, there were countries like America, USA, UK, okay, about say 200 years ago, only men, and that too of a rich society, landlords, only they were allowed a voting right. Same house, the wife, the daughters, not allowed, that they are not citizens, they cannot vote. Then those women had a big आंदोलन, अच्छे से नहीं हमें वोटिंग राइट्स देने चाहिए। लोगों ने एसेज लिखे, लोगों ने कविताएं लिखी, and they had a big fight. They won the right to vote. ऐसा तुम्हारा मेरा हुआ नहीं है। राज्य घटना बनी और इंप्लीमेंट हुई 26 जनवरी 1950 को। भारत देश प्रजासत्ताक बन गया 26 जनवरी, and constitution was being implemented, and in the constitution it is written all citizens of India above 18 years of age have a right to vote. One person, one vote, and that vote is a secret ballot. मुझे कोई पूछ नहीं सकता है कॉलर पकड़ के किसको दिया वोट। सी, हम लोग जब इलेक्शन कंडक्ट करते हैं ना, पिछले 2 टाइम के इलेक्शंस हमारे अपने कॉलेज में सब लोगों ने, हम टीचर्स ने कंडक्ट किए हैं, जूनियर कॉलेज के टीचर्स भी और डिग्री कॉलेज के टीचर्स भी। हम डिग्री कॉलेज के टीचर्स, वो जो हमारा बूथ होता है ना, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो हमको ये देखना पड़ता है दैट जो वोट डालने के लिए जो बॉक्स के जैसा आता है, उधर कोई दूसरा जाएगा नहीं। वो वोटर गई है, दूसरा कोई जाएगा नहीं। उसको सामने रह के कोई जेस्चर्स करके करेगा नहीं, या बाहर उसको कोई डांटेगा नहीं, या
पैसे वगैरह दे रहा है तो बाहर तो पुलिस होती ही है. No, so we do conduct free and fair elections in the country. And Election Commission of India has the authority over conducting elections. Okay, and what is our duty as citizens, my dear, then? We have to go vote. We have to go vote. अभी आप मुझे बताओ, जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक 2-3 तो सीआर है ही, मुझे ये मालूम है कि ये लोग सीआरस हैं. हाँ, आप मुझे बताओ, परसों आप कल आप सीआर सिलेक्ट हो गए, इलेक्ट हो गए, हाँ या ना? Yes, miss. अगर कोई भी वोट देने को नहीं आता था तो कैसे लगता था? तब तो फिर हम होते ही नहीं शायद. नहीं, लेकिन फिर आपकी क्लास का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है, ऐसा हो जाता है, राइट? यस मैम. और आप सीआरस जो आपको स्टूडेंट्स ने, आपके क्लासमेट्स ने इलेक्ट किया है, या दे हैव वोटेड फॉर यू because they trust in your abilities that you will represent them nicely. Yeah, that they can approach Kunika, they can approach Devanshi. Yeah, like that. I do remember these are two पक्का CRC लोग है, इसके लिए मैं इनका नाम ले रही हूँ. कोई और होगा तो वो लोग का भी नाम है, ऐसा समझो, assume करो. The point is, if people don't vote, there will be no proper representation in the government. In the government, more people have to vote in order that candidate which is selected by more and more people, who's liked by, who is trusted by more and more people, will be, there is a high chance that that candidate will be a better candidate than others. And that way, we will be able to send in the municipality, in Gram Panchayat, in Rajya Sabha, sorry, not in Rajya Sabha, in Lok Sabha, in State Assembly, Vidhan Sabha jo hai wo, yeah, everywhere at all levels of local self-government, we will be able to choose a better leader. And it's not just about one leader, it is about so many leaders. See, you have FYBCom is a bigger class, more than 120 students. So therefore, this year we have got 3 CRs, isn't it, Devanshi? Yes ma'am. Yeah. The SYBCom and TYBCom have got about 80 to 90 students. So from them, 2 CRs only. Yeah, then I'm sure in sociology, Antima, can you tell us, your class has got how many CRs? Zeba, can you tell us? Ma'am, 2 TYBMS में? CRs. Sociology से 2 CRs? जी मैम. Okay. Zeba, what about you? From TYBMS, 2 CRs. Zeba, are you there? Okay, I can tell you the rule. It is every class gives 2 CRs, but FYBCom, which has got more than I think 124 students in your class. That's why it is decided to call for 3 CRs. Because bigger the class, you need better representation. Okay, yeah, and the same is done in India. We have a state like Maharashtra, which is a big state with lot of population. So more members of parliament go than compared to Kerala. Smaller state, small number of people. Goa, एक state है, but
लोग कम है उधर, तो उधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 48 नहीं जाते हैं महाराष्ट्र की तरह, बहुत कम जाते हैं, 2 या 1 ही जाते हैं. So bigger the size of the population, more is the number of voters, and therefore more will be the number of representatives. Okay, and so basically, are you able to understand the process of voting and the reason why we vote? Yes, miss. See, ये समझने के बाद अब आपको मैं एक तो वो फाइल मैंने पढ़ना शुरू किया था वो फटाक से पढ़ देती हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी. एक तो इट इज अ यूनिवर्सिटी लेवल पोस्टर मेकिंग कंपटीशन. यू आर एबल टू सी द फाइल आई एम शोइंग यू? No, miss. अच्छा, आई एम नॉट शेयरिंग. No, ma'am. Yeah, 1 second, I'll share. I stopped sharing, I guess. Now are you able to see? You will see. Yes, ma'am. So क्या है? So we are university level poster making competition on the theme of National Voters Day in India. Okay, the theme is importance of voting in democracy. Yeah, and so to give you an information, I told you that National Voting Day, Voters Day in India is 25th January. And it is the foundation day of the Election Commission of India. Then I told you about what is an election commission. Yeah, and the kind of things it does. It is a most powerful authority about elections of any kind to be conducted for local self-government in India. Even, these CR elections, we get rules from SNDT. Why? Because in all the colleges of SNDT, same rules have to be followed. So in the same manner, and how SNDT decides such a system? Because Election Commission of India has such rules that all over India, any kind of election, certain rules are there. Equality. And every election, the voters have a right to vote, and voters have a right to secret ballot. Nobody can ask me, nobody can compel me to vote any particular party. Are you clear? That's what is the power. And it's like people like us who were on election duty, it is our job. To what? ये शारदा आई है और उसको कोई बोल रहा है फलाने पार्टी को वोट देने का. क्या? और हम उसको, वो जो आदमी है या कोई भी औरत जो शारदा को धमका रही है, समझो, तो हम उसको बाहर करेंगे कि हाँ भाई आपका वोट हो गया, ओके आप यहाँ पे मत आओ. ओके, और उसको सुनना पड़ेगा मेरी बात एज पर रूल गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देन शारदा को हम बोलेंगे कि शारदा जी आप जाओ, आपका वेरिफिकेशन करना पड़ता है, वो वोटर कार्ड दिखाओ, ये करो, यहाँ पे साइन करो. ओके, साइन किसके लिए करने का? कि हाँ उसने वो वोट देने को आई. नहीं तो शारदा जी आई थी 2 बजे, क्या उसके बाद कोई बोगस शारदा जी उठ के आती है कितने बजे? 4 बजे, मैं हूं शारदा. हम बोलते हैं कि नहीं इसका तो वोट हो गया. यू गेट दैट? इसके लिए वो साइन करने का. देन वी टेल शारदा ओके ये जो इधर बूथ है इसमें जाओ, और उधर ना ऐसा एक कवर होता है पूरा, वहां पे मशीन होता है इलेक्शन का, वो बटन है,
वो कौन से भी बटन पे आपने खाली प्रेस करना है, ग्रीन बटन। तो जो पार्टी का निशान को आपको वोट देना है, उस पार्टी के बाजू में जो ग्रीन बटन है उसको दबाओ, फिर वो मशीन से एक प्रिंट आउट आपको दिखता है। शारदा जी को दिखता है, हाँ मैंने ये जो चिन्ह है उसको वोट दिया था, तो उसी को प्रिंट आउट होके आया। यानी कि ये वोटिंग मशीन खराब नहीं है कि मैंने पार्टी ए को वोट दिया और ये दिखा काउंट कर रहा है पार्टी बी को। ऐसा नहीं है ये मशीन। ये शारदा जी को दिखता है, उनको वो प्रिंट आउट नहीं मिलता है, वो प्रिंट आउट इलेक्शन कमीशन के पास ही रहता है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वोट है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोट काउंट करने का कमांड दिया तो काउंटिंग हो जाता है। लेकिन किसी ने बोला कि नहीं मेरे को डाउट है, किसी ने मतलब कोई बड़ा पॉलिटिशियन जो खड़ा है इलेक्शन के लिए, तो वो जो अपने प्रिंट आउट है ना, शारदा का प्रिंट आउट, कुनिका का प्रिंट आउट, वो सारे काउंट हो जाएंगे। हाँ कुनिका ने इसको दिया, शारदा ने इसको दिया। उधर शारदा का नाम नहीं है, कुनिका का नाम नहीं है, उसका वोटर नंबर नहीं है, कुछ नहीं, खाली कागज पे वो चिन्ह आएगा बस। और वो हाँ, पार्टी ए को इतने वोट्स, पार्टी बी को इतने वोट्स, लाइक दैट। डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स हाउ वोटिंग टेक्स प्लेस। Complete secret ballot. Why this is done? Because you have to have a chance to select a good leader who will take care of developmental activities in your area, in your city, in your state, in your country. The way you elect a CR of your class so that your CR will represent you to the college in matters when it comes to discussing certain things with the principal madam, with other teachers, to conduct certain activities of the college. See, like tomorrow, CRs are going to come to attend because it's a college activity. We are not asking everybody to come, but they are representatives. So, aa jao. Yeah, and they get to learn things and they get to report to you कि क्या हो गया college में, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, right? In the same manner, when we vote, we choose a representative and they are supposed to do something for the betterment of the constituency. वो एरिया जिन्होंने उसको वोट दिया है, betterment. Okay, that's why voting is important. More people have to vote. And unfortunately, we are in the 75th year of our democracy. 72 years since Election Commission of India was set up, instituted. 1950. तो straight away 72 years हो गए, है ना? तो भी last election है ना 2014 का, that had a highest voter turnout, highest number 2014 के इलेक्शन में, वो भी लास्ट में, 2019 में भी नहीं, 19 में कम हो गया, 2014 election the vote all over India. How much do you think? Guess. आंकड़ा बताओ कुछ भी, कितना परसेंटेज होगा? हाईएस्ट आंकड़ा था, कितना होगा? 70. Nah, you're very close. It was only 66.6%. And what it means is, starting from 1951, when the first elections were held, till even 2019, what does that mean? Indian voters, less than 66% voters have voted. That's why we need to campaign.
एंड यू आर यंग वोटर्स ना, 2 साल बाद आप पक्का आपको वोटर कार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आपने वो अप्लाई करना चाहिए, वो वेरिफिकेशन के लिए दे देना चाहिए, तो वोटर कार्ड मिल जाएगा आपको, देन यू विल बी वोटर्स। एंड इफ यू डिसाइड हाँ मैं तो छुट्टी है, मैं आराम करूंगी, हम घर के सब लोग गाड़ी निकाल के घूमने जाएंगे या घर पे ही बैठ के आराम करेंगे, अच्छा हो गया छुट्टी मिल गई, लोग ऐसा करते हैं, मैं जोक नहीं बता रही हूँ, लोग एक्चुअली ऐसा करते हैं। इलेक्शन है ना, चलो घूमने जाते हैं। But we have, are you able to understand the importance of elections and voting? Yes, miss. तो आपको इस बारे में कैंपेन करना है, और वो कैंपेन के लिए पोस्टर्स बनाने हैं, समझा? और अब जी मैम। ये जो गूगल फॉर्म है ना, मैं आपको वो दिखा रही हूँ, मैंने वो ऑलरेडी ओपन किया है। मैं अभी दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ so that you can see that Google form. Okay, and Google form. अरे यार ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ, are you able to see this Google form now on the screen? Yes, miss. हाँ, ये गूगल फॉर्म खुलेगा, ये SNDT का गूगल फॉर्म है, या एंड you have to fill out the form. I'm not filling out, I am basically showing you email, यहाँ पे तो उन्होंने मेरा email ले भी लिया, but you have to confirm your email here, yeah, the name of the participant. Please write your proper name and surname. Do say now what? Devanshi Dubey, right? तुम्हारा नाम देवांशी दुबे है ना? यस मैम यस। तो देवांशी दुबे लिखने के बजाय देवू दुबे नहीं लिखने का। यस मैम। घर में आपको कुछ भी बोले लोग, आपको आपका फॉर्मल नेम ही डालना है। इज दैट क्लियर? जो आपके कॉलेज के एडमिशन कार्ड में आता है, आई कार्ड में आता है, आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आता है, आपके मार्कशीट में आता है, वही नेम आपका लीगल एक्सेप्टेबल नेम है, वही डालने का, और उसमें कोई नाटक नहीं चलता है, समझा? हाँ, सी ना, ये मेरा ईमेल आईडी इज नॉट swativaidya@gmail.com, मेरा ईमेल आईडी स्वाचार होता है, बट मैं इधर नेम के जगह पे नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट स्वाचार लिखूं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। स्वाचार नाम की कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में। स्वाचार का ईमेल आईडी है, बट स्वाचार इज नॉट अ पर्सन। तो देवू दुबे यानी के देवांशी दुबे नहीं, कोई दूसरा ही देवू होगा, 70 साल का आदमी होगा। तो प्लीज डोंट मेक अ नॉनसेंस विथ योर क्या बोलते हैं, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। और खाली फर्स्ट नेम कभी भी नहीं लिखने का, नेम एंड सरनेम। इज दैट क्लियर? Then they are asking email ID again, तो write it again. Then मोबाइल नंबर आपका WhatsApp जिसमें चलता है वो, if your phone doesn't have a WhatsApp and you're using your mother's phone for WhatsApp messages, तो वो नंबर इधर डालना, ठीक है क्या गर्ल्स? Yes, miss. देन यस मैम। अपने कॉलेज का नाम लिखना है, वो क्या लिखोगे आप? BM रुइया गर्ल्स कॉलेज मुंबई, ठीक है? कुछ भी आधा अधूरा नहीं लिखने का। आपके पास फी रिसीट होगा, कॉलेज का आई कार्ड होगा, पूरा नाम, हम हर नोटिस भेजते हैं उसमें हर जगह पे लिख के आता है ना, मारवाड़ी सम्मेलन BM रुइया गर्ल्स कॉलेज मुंबई,
या तो अपने कॉलेज का नाम है BM रुइया गर्ल्स कॉलेज मुंबई, वो नाम लिखने का. Then you write your class. They have said FYBA Commerce. Yeah, now FYBA Sociology, FYBA Economics, FYB Com. Yeah, TYBMS, SYBA, what Hindi. ऐसा आपका ये लिखो क्लास और आपका ग्रुप. जो बीकॉम के बच्चे हैं उनको ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं, वो बीकॉम में आ जाता है. ठीक है ना? Then next is type of poster. Are you going to make a handmade poster? Matlab, are you going to draw the poster on a big poster paper, paint it, yeah, and send a photo of it, or you are making a digital poster directly? That is, you are using वो पेंट ब्रश, वो नोट, उसमें पिक्चर ड्रॉ करोगे आप, या आप वर्ड फाइल या पावर पॉइंट उस पे आप पोस्टर बनाओगे, यू नो. और पोस्टर में आप कुछ एक्चुअली यू विल गो एंड टेक अ फोटो ऑफ समथिंग एंड एक कैप्शन दोगे और वो आपका वर्ड फाइल में बनेगा, या आपका आप उसका PDF बना रहे हो या इमेज फाइल बना रहे हो, पावर पॉइंट में बना के उसका PPT फाइल ही भेज रहे हो. Okay? ऐसा अगर कर रहे हो तो वो डिजिटल पोस्टर होगा. मगर इफ यू ड्रॉ द पोस्टर लाइक हाउ यू यूज टू ड्रॉ इन स्कूल, स्कूल में होता था ना, ड्राइंग होता था ना, आपको सबको होगा ना ड्राइंग स्कूल में. यस Yes, मैम. miss. तो सबका ड्राइंग अच्छा नहीं होता है, मेरा तो बहुत खराब होता है. बहुत खराब होता है. मुझे ये बताने में शर्म भी नहीं आती है, मेरा ड्राइंग भयंकर खराब है. तो फिर भी सीखना तो पड़ा था ड्राइंग. तो वैसा अगर आप हाथ से ड्रॉ करके पोस्टर कर रहे हो तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे ये फॉर्म में? हैंडमेड. लेकिन अगर आप पोस्टर बनाने के लिए, मैं ना अभी एक आपको डिजिटल पोस्टर दिखा रही हूँ जो मैं बनाते रहती हूँ. बीच में मैं पोएम्स जो लिखती हूँ ना उसके मैं पोस्टर बनाती हूँ. तो मैं एक आपको पोस्टर बना रही हूँ, दिखा रही हूँ खाली. 1 सेकंड. किधर गया? कुछ पोस्टर ही नहीं दिख रहा है मुझे. हाँ, एक मजेदार पोस्टर मैंने बीच में बनाया था पिछले हफ्ते. वो बना दिखा रही हूँ मैं 1 मिनट के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू, वो बहुत मजेदार है. इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी वेरी फनी पोस्टर. मैंने वो किसी के साथ शेयर भी नहीं किया, वो ऐसे ही मैंने बना के रखा खाली. हाँ, इट्स वेरी फनी पोस्टर. कैन यू सी द पोस्टर? यस मिस. What is written there? It is totally made on the computer. मेरा एक फोटो था मेरे पास, ये इधर डाल दिया. हाँ? और ये क्या है? Today was interesting. I crossed boundary. Kept away from any tea for 3 days. या ये मैंने पिछले हफ्ते किया. 3 दिन चाय क्या ब्लैक टी भी नहीं पिया. Okay? But then एक दिन it was now or never. और मैं चुपचाप जाके चाय बनाया 7 बजे के बाद शाम को और पिया. और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद को जो चाय की शौकीन समझती हूँ ना, टी कनोसियर, चाय की शौकीन. शायद मैं चाय की शौकीन नहीं, मुझे चाय की शायद लत है. नो, टी होलिक्स, अल्कोहलिक्स के जैसा टी होलिक्स, वो एक शब्द है. या ऐसा ही मजेदार पोस्टर बनाया मैंने. बट all these things I have drawn on the computer directly. The photo is from the phone and I have pasted. The font, the text, I have everything made a digital poster. Are you clear?
So if you make a digital poster like that, what option you will choose? This. Digital poster. Ha. Did you understand the difference between a handmade poster and a digital poster? मैम कब तक का सबमिट करना है, मतलब फॉर्म? My darling, सबमिट करना है। वो इधर लिखा है 8 फरवरी. Today is 4th February. ये कल शाम को अपने को थैंक यू मिला मैम, है. सॉरी मैम। नो 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 प्रॉब्लम. मैंने आपको जो मैसेज भेजा है ना व्हाट्सएप में, उसमें सब लिखा. हाँ. And this part is more important. This here. ये फॉर्म खुलने के बाद आपको पोस्टर सबमिट कैसे करना है, इधर करना है. हाँ, तो क्या करने का, ये प्लीज देखो सब लोग. ऐड फाइल, आपके फोन में से सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस. फिर ऐसा वो इमेज का कुछ कुछ आएगा. तो आपको जो फाइल चूज करनी है उसको समझो. मैं अभी एक फाइल ये करती हूँ. पीपीटी का एक फाइल होना चाहिए. और मैंने ये वर्कशॉप शुरू होने से पहले ये देख लिया है कि पीपीटी की फाइल एक्सेप्ट हो रही है, जेपीईजी मतलब फोटो भी एक्सेप्ट हो रहा है, और वर्ड फाइल भी एक्सेप्ट हो रही है, या एंड पीडीएफ फाइल भी एक्सेप्ट हो रही है. ओके ठीक है, तो मैं ये पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है, दिख रहा है ना सबको? देखो जी उधर मैम। लिख के आया. हाँ, तो ये पीडीएफ फाइल मैं ओपन बोलती हूँ. तो देखो ये इधर दिखा रहा है कि हाँ ये फाइल का नाम. यहाँ पे खत्म नहीं होता है, यहाँ पे मुझे अपलोड बोलना पड़ता है. अब ये फाइल इधर अपलोड हो गई. इसके बाद ये डिक्लेरेशन, आई एम नॉट कॉपीड द पोस्टर. मैंने इंटरनेट से कुछ पोस्टर का आइडिया चुराया और वैसा का वैसा लिया, ये सब नहीं चलेगा. They will simply throw your poster away. They will not consider it for any price. फिर आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो जो करोगे वो ओरिजिनल करो. इधर यस करना पड़ता है और ये पहला सारा जानकारी आपको भरना पड़ता है. हाँ, और फिर इधर सबमिट करना पड़ता है. अभी तो मैं सबमिट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कुछ भरना नहीं और मैं थोड़ी ना स्टूडेंट हूँ. तो अभी तो मैं सबमिट नहीं करूंगी कुछ. हाँ, और समझो आपको ऐसे लगता है हाँ ये गलत फाइल है. ओके, ये फाइल आपको नहीं भेजनी है, दूसरी फाइल भेजनी है. तो क्या करोगे, यहां पे हो आप तो सी दिस, गई वो फाइल. द फाइल हैज गॉन. करेक्ट? यस गर्ल्स? हाँ. तो आर यू क्लियर हाउ यू हैव टू सबमिट द पोस्टर्स? यस मैम। Yeah. And did you get an idea of what is voting? Yes, ma'am. And why voting is important? So यस मैम। we will stop here now because it's almost 1 hour and I'm sure you had today one full lecture ka day, and it was for first years. It was the first day, I guess, or second day. No, today was your first day, right? First years के लिए. हाँ. यस तो और मैम। अभी परसों तो एग्जाम खत्म हो गया है, तो आज ज्यादा बहुत पकाया ऐसा मुझे लग रहा है आपको. But this was not a total waste. Was it useful to attend? Do you Yes, get ma'am. some idea? Yeah, fine. Okay, so I will be uploading this video after some time on a YouTube channel, और उसका लिंक, वीडियो लिंक मैं आपके NSS के ग्रुप में भेजूंगी. Okay, so that there are few CRs here and there are even in that group. You tell students watch the video. आपको
ये पोस्टर कंपटीशन में क्यों पोस्टर कंपटीशन रखी है? वोटर मतलब क्या, वोटिंग राइट मतलब क्या, इलेक्शन मतलब क्या, ये सारा ढंग से समझ में आएगा तभी तो आप बराबर पोस्टर बना पाओगे ना। वरना क्या कुछ भी गूगल में सर्च किया, कुछ भी डाल दिया, वो थोड़ी ना इंटेलिजेंट सोचने वाले इंसान का काम है। वोटर तो इंटेलिजेंट सोचने वाला, दिमाग चलाने वाला, क्या सही क्या गलत ये सोचने वाला इंसान होना चाहिए, राइट? यस मैम। और क्या सही और क्या गलत कब पता चलेगा? जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो। आप अगर वोट दो करके कैंपेन करने वाले हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि भाई वोटिंग क्या चीज है, इलेक्शन क्या चीज है, वोटिंग का राइट है क्या मेरे को। कोई लड़की है जिसको, लड़की नहीं समझो, कोई लिटरली कोई 80 साल की महिला है, और वो उसको व्हील चेयर से लेके आते हैं वोटिंग के बूथ में। मेरे साथ ये पिछले टाइम जब इलेक्शन हुआ था स्टेट गवर्नमेंट का, तब मेरे साथ ये हुआ था। उसको व्हील चेयर पे लेके आए, वो व्हील चेयर को बराबर वो जो वोट देने की जगह है उधर हम लोग लेके गए उसको। या फिर वो जो इलेक्शन का मशीन है ना, वो थोड़ा आगे करना पड़ा था मुझे। और वो मैडम को मैंने बोला आपको जिसको वोट देना है वो दे दो, मैं इधर हूं, लेकिन मैंने मेरी आंख बंद करके रखी थी और मैंने बाकी किसी को उधर आने नहीं दिया। और सामने एक जो मेरे स्टाफ थे उनको बोला था प्लीज चेक करो कि मेरी आंख बंद है। और वो महिला को दूसरा जो उसकी एक क्या बोलते हैं उसकी पोती लेके आई थी, ग्रैंड ग्रैंड डॉटर लेके आई थी वो उसकी नानी को या दादी को। वो लड़की को भी बोला मैंने, ये देख मेरी आंखें बंद है, मुझे भी दिखना नहीं चाहिए कि वो मैडम ने वोट किसको दिया। इतना इंपॉर्टेंट है आपका राइट टू सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट यानी कि गुप्त मतदान। और इलेक्शन कमीशन के वो सारे रूल्स है कि आई होप ये सारा आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको वाकई में लगेगा कि इलेक्शन में वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हाथ में एक व्हाट वी कॉल पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जिसके हमारे एक वोट के सहारे, और मेरा एक वोट और लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के वोट्स के अगर सही लोगों को जाएंगे तो सही रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव गवर्नमेंट में होगा और वो लोग सही रूप से तुम्हारे मेरे विकास, भलाई, सुख चैन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर एजुकेशन के लिए काम करेंगे। इसके लिए जो वो 2014 का 66% हाईएस्ट है ना, वो बहुत खराब है यार, बढ़ना चाहिए या। और वो बढ़ाने के लिए आप लोगों ने थोड़ा अभी से थोड़ा लोगों को कैंपेन करना चाहिए। बट इन ऑर्डर दैट यू आर एबल टू कैंपेन यू शुड नो ना क्या है चक्कर। इसके लिए ये कंपटीशन भी और इसके लिए ये वर्कशॉप भी। ओके, एंड इन द नेक्स्ट 2 days whoever wants to participate, write your name in the NSS का ग्रुप। वो मैं अभी एक लिस्ट भेज दूंगी आपको। नहीं, मैं लिस्ट नहीं भेजूंगी, वो एक गूगल फॉर्म भेजूंगी, उसमें आपने नाम अपना और सबमिट करना है आपका क्लास, दैट यू विश टू पार्टिसिपेट इन SNDTs क्या इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग पोस्टर कंपटीशन। ठीक है,
ताकि आपको बार बार वो कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो एक गूगल फॉर्म में डाल दिया कि नाम डाला और क्लास डाला और हाँ यस आई वांट टू पार्टिसिपेट, ये किया, बस हो गया, है ना? ठीक है? Yes, ma'am. So we will stop here now. I am going to stop the recording.